So let's start with the next chapter, that is mass media in 20th century. So we have already studied the various chapters and seen the key concept of mass media. So uh, the concept of mass media means the communication power between the gap. Once when we studied one of the previous times when the people are fighting or we have to send some message, it takes 1 or 2 3 days else, and then something happen, people may die, है ना. But now with instant mass communication, numerous things can be achieved very frankly. In the very diverse and the very severe case of war, where people are stuck, एकदम जगह पर फंसे हुए हैं, लोग कहीं भाग नहीं पा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में रेडियो का इस्तेमाल करके वॉकी टॉकी हो गया, सेंसर हो गया, माउस कोड हो गया, कितने सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर हो गई, इससे आप इन्फॉर्मेशन को डिजेंटली हर जगह पहुंचा सकते हो. रिमेंबर एवरीवन, information is money, information is key, information is time, and information is everything. So if we divide this section of the tree and we place information in the root section, and these branches and leaves we say that they are the different instruments of mass media, then we can see that information can be related to each and every section with different means. So is the time of wars, at the time of World War I, World War II, and human development, human infrastructure, village rural development, everything requires information which is connected to communication. Instant communication requires different mass media instruments. So we are going to discuss in this chapter what are the importance of different mass media. So remember in this chapter what are communication media is given in this paragraph. Simply it means the way we can talk, write, shout, drawing, gesture, sign language, beating a drum, etc., which we can exchange for human views and messages in different ways, है ना, to impact the people thoughts and thinking, that is known as communication. Okay, so what is communication? It is given in this paragraph. This paragraph should be remembered. Communication means to send or receive anything from one place to another. That simple means. Okay, let's see in this first paragraph. Invention of printing press and the impact it made on the people lives during the Renaissance period. So after the Industrial Revolution, many machines were invented that made easy to communicate, exchange news rapidly and easily. So once the newspaper was invented, through a steam engine by trains, the information is transferred instantly to all the places in the country. So this is how very high and easy expansion of information takes place during the time. So let's start the next section. Thus, the communication media has been transformed into a mass media today and has the power to influence and control the thinking and lifestyle of the vast population. In this, we will expect the different cases of this development. So in this paragraph, it is given how, if you write the question, how the means of communication media has transformed into mass media. So this question has came in your board exam. So this has to be remembered. Explain how mass media influence the world trade. Explain how mass media influence the global economy. Explain how mass media make the easier path for war. ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछ चुके हैं. सो इसी पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे. इसके अलावा इस चैप्टर बहुत ईजी, इसको आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हो. The point to be remembered in this section is the 2-number question, the 3-number question. What are the different types of print media? So newspaper, okay. Next is these are the newspaper. So there are different types of newspaper. So print media में कैसे कैसे आएंगे. न्यूज़पेपर हो सकता है, प्रिंटर होगा, अभी जो मास में इस्तेमाल करते हैं. सो देखते जाइए इसमें क्या लिखा है. प्रिंट मीडिया, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग लेड टू शार्प राइज इन नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड प्रिंटिंग मटेरियल्स इन यूरोप. इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा. हाउ प्रिंट मीडिया कन्वेट द पार्ट फॉर द लिटरेट पीपल. ऐसा लिखोगे तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे. मैनी न्यू इंस्टीट्यूशंस सच एज लाइब्रेरीज एंड बुक फेयर्स केम इन टू इन 19th सेंचुरी. अब देखिए प्रिंट होने के बाद किताबों में इन्फॉर्मेशन को रखा गया है ना, तो उसके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बना दी गई. ये ओपन बुक सिस्टम हो गया. तो बहुत सारी जगहों पर बुक फेयर में आसानी से किताबें मिल जाती हैं. इस तरह से क्या हुआ, प्रिंट मीडिया चलने लगा. स्टीम इंजन बिगेन पावरिंग प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप फ्रॉम 1814 एंड कलर प्रिंटिंग प्रेस वेर बिल्ट फ्रॉम 1937. ओके, डाउन ऑफ 20th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस और पावर्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए, अब पहले जो उसको वर्बली वो लोग कुछ वुडन ब्लॉक से चैनल लेटर्स को बना करके, या पहले जिन किताबों को छापना है या उसके लेटर्स को प्रिंट करके या उसको कार्व करके वो लोग क्या करते थे, केवल किताबों में छापा करते थे. पहले से किताबें छापी जाती थी.
या हाथ से लिखी जा रही है, ऐसा मान लीजिए। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मतलब जब हम लोग प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, वैसा सिस्टम पैदा हो गया, उसके बाद ही बड़ा ईजी हो गया। दिस डेवलपमेंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, सो इट बिकम पॉसिबल टू प्रिंट लार्जर क्वान्टिटीज ऑफ बुक्स एंड मैगजीन। अब जितना ज़्यादा बुक और मैगजीन प्रिंट कर पाओगे उतना अच्छा। नेक्स्ट, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया इज न्यूज़ पेपर्स। द टू टाइप्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स वर प्रिंटेड इन अमेरिका एंड ब्रिटेन एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट आर द यूज ऑफ न्यूज़ पेपर, ठीक है, इस पैराग्राफ में पूरा आंसर लिखा है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इज there are two types of newspapers printed in America and Britain, है ना, या what are two types of newspapers at the beginning of 19th century। तो क्या है इसको लिखेंगे इस पैराग्राफ में, इसका आंसर है वन स्पेशलाइज्ड पब्लिक कमर्शियल न्यूज़, है ना, एक कमर्शियल व्यापारियों के लोग के लिए था, और एक जो केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए था, ठीक है। एंड देखो एक और प्रकार का बना लिया गया उसको, ये सिर्फ दो ही प्रकार के थे, जो केवल गवर्नमेंट को चाटने के लिए और क्या बोल सकते हो गवर्नमेंट का हुजूरी करने के लिए, और केवल व्यापारी को आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए बताने के लिए किया जाता था। थर्ड टाइप ऑफ लोगों ने फैम बना लिया, उसको नाम दिया गया टैबलॉइड न्यूज़पेपर। इसका मतलब वो बहुत सस्ता हुआ करता था, इसमें लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया करते थे, जो वर्किंग क्लास लोग हुआ करते थे। तो ये एक्चुअल में क्या था, डेमोक्रेटिक न्यूज़पेपर था उस समय। दिस टैबलॉइड न्यूज़पेपर वॉज कॉल्ड पेनी प्रेस और फार्थिंग मैगजीन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पेनी प्रेस और फार्थिंग मैगजीन, एक ही बार आया, मैंने देखा इसको। सो दिस टैबलॉइड न्यूज़पेपर वॉज कॉल्ड पेनी प्रेस एंड फार्थिंग मैगजीन। किसके लिए था न्यूज़पेपर, यूज्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास विच इज़ चीप एंड इजली अवेलेबल। ये कितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है, और उसके यूज़ क्या इस पैराग्राफ में दिया है। ओके, सो इसमें देखिए फार्थिंग में इट कंटेन मोस्टली क्राइम रिपोर्ट्स एंड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज। अब देखिए ये डेमोक्रेटिक है, चेतावनी की तरह है कि नहीं। तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, द वर्किंग क्लास वॉज डिमांडिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस विच वर लिमिटेड टू अपर क्लास इन दोज डेज। सीइंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट बिगन इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर कंट्रोल एंड एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। इस तरह इसको रोक दिया गया। अब यहाँ देखिए, पीपल अपोज द स्टैम्प टैक्स बिकॉज दे सॉ इट इज अ टैक्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर इसको रोकने के लिए क्या गया, बट द स्टैम्प टैक्स हैड द पॉजिटिव इफेक्ट। ये टैक्स कॉल्ड द स्टैम्प टैक्स। अब देखिए व्हाट इज स्टैम्प टैक्स, क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, was also imposed on them, raised their prices and ensured they were no longer within the reach of common people. But the stamp tax had opposite effect. Small printing presses began printing illegal newspapers that became very popular among the people. देखिए, people opposed the stamp tax because they saw it as a tax on knowledge, eventually forcing the government to withdraw the tax in 1858. This step ushered the global age of newspaper. इस तरह से न्यूज़पेपर पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक हो गया, इसमें लोग कुछ भी छाप सकते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेस बैरन्स मतलब क्या होता है, दिस आर द ओनर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स नोन एज द ओनर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर नोन एज प्रेस बैरन्स, ठीक है। अब देखिए जो प्रेस बैरन्स होते हैं ये क्या करते हैं, किसी न्यूज़पेपर के प्रोपेगेंडा को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे कि देखिए हिंदू जागरण सब अपने अलग अलग परिवार वालों के पास है। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। अगर आपने उन प्रेस बैरनों को खरीद लिया तो आपने न्यूज़पेपर भी खरीद लिया मान के चलिए। देखिए दे बिगेन टू प्रेस बैरन्स क्या करने लगे, दे बिगेन टू प्रोपगेट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, है ना, तो व्यक्तिगत आइडियोलॉजीज को प्रपोर्ट करने लगते हैं वो लोग। दिस ट्रेंड वॉज पर्टिकुलरली नोटिसेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द न्यूज़पेपर ऑफ ब्रिटेन एंड जर्मनी विप्ड अप पब्लिक सेंटिमेंट फॉर द वॉर एफर्ट एंड हेटेड फॉर द एनिमी इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। सो आपको क्या करना है, लोगों में नेशनलिज्म जगाना है। तो इस तरह से आप क्या छापोगे, कुछ सिम्पैथेटिक छापोगे और दूसरे जो एनिमी है उसके खिलाफ बुरा छापोगे। इससे क्या होगा, लोग उनसे नफरत करेंगे और वॉर में कूद पड़ेंगे। द न्यूज़पेपर पब्लिश न्यूज़ टू जनरेट अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमॉन्ग द पीपल एंड एनकरेज देम टू एनलिस्ट इन द आर्मी। समझ आ गया इसका फायदा आपको। सो व्हाट आर द यूज ऑफ न्यूज़पेपर इन द वॉर पूछेंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने मार्क किए हैं। द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज पब्लिकेशन वॉज दूरदर्शन लिखा है, ठीक है ना, ए बंगाली मैगजीन पब्लिश्ड बाई मशराम फ्रॉम सेमापुर इन बंगाल। In 1888, Raja Ram Mohan Roy published the first Persian newspaper, मिरत उल अकबर। अकबर, हाँ, है ना। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये वन में पूछ देते हैं कभी कभार, ठीक है। देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट्स एंड द हिंदू, है कि नहीं। लोकमान्य तिलक बिगन पब्लिशिंग द फेमस मराठी नेशनलिस्ट नोन एज केसरी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सभी ने शुरुआत की हैं। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
The colonial government did seek to control newspapers, but there was always strong opposition to the press censorship, so the state could never exercise total control over the media. The first law to govern the press was passed in 1799. It required the publisher to declare his name and address so that the government could conduct inquiries when required and also get the approval of the government censor before publishing the newspaper. इस तरीके से इसको पूर्ण रूप से क्या गवर्नमेंट के सेक्शन में, जैसे चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, रशिया में सब चलता है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहाँ आपको गवर्नमेंट के खिलाफ छापना या उसकी जानकारी के वहाँ कुछ बोलना ये वो नहीं है। ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें लिखा है लोग उसको कंट्रोल करेंगे कि आप क्या पढ़ते हो। आप देख सकते हो बुक में आप क्या पढ़ते हैं से लेकर न्यूज़पेपर में क्या दिखाते हैं, सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है गवर्नमेंट कंट्री के लिए। द प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम आर द कस्तूरी एंगर फैमिली, द हिंदू उनके पास है, साहूजन फैमिली टाइम्स ऑफ इंडिया रखता है, नवभारत टाइम्स गोयनका फैमिली के पास है, एंड द इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता के बिरला, एंड द हिंदुस्तान टाइम्स अरुण पूरे फैमिली के पास है। ठीक है, ये सारे परिवार अगर किसी गलत आइडियोलॉजी को फॉलोअप करने लगे तो डेमोक्रेटिक कहाँ से होंगे। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें किसने इसको कैसे खोजा उसके बारे में लिखा है। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा व्हाट आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया में, तो आप इसको इस तरह से लिखना, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, है कि नहीं, फिल्म, टेलीविज़न। ठीक है, सो इस तरह से लिखना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है रोल ऑफ टीवी इन इलेक्शन। इस पैराग्राफ को एकदम याद रखिए, इसमें पूरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर रीजन्स फॉर ग्रोथ ऑफ टीवी मीडिया, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट में सेक्शन मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आपको 7 पॉइंट में मैंने बता दिया है, बड़ा ही ईजी है। और देखिए रीजन्स फॉर कमर्शियल, क्या बोलते हैं, रीजन फॉर कमर्शियल सेक्शन में तो क्या आएगा, ये जो रीजन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टीवी मीडिया है इसमें एक पॉइंट यहाँ से है और बाकी सारे पॉइंट इस पैराग्राफ में है। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ को पता होगा आपको कैसा होता है। इन्वेंशन टेलीग्राफ है सैमुअल मोर्स इन 1837। आपको याद रखना है कि इसने इसको खोज किया कौन से साल में, तो टेलीफोन खोज किसने किया कौन से साल में, ठीक है, रेडियो किसने खोज की कौन से साल में, फिर फिल्म को खोज किसने की कौन से साल में। इस तरीके से आप क्या उसको समझ पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कैसा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द टाइम्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसको लिखने के लिए इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिएगा लिखा हुआ है टेलीग्राफ में, इट्स पॉसिबल टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाया ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है ना, टेलीग्राफ मशीन हेल्प न्यूज़ पेपर गेन एक्सेस टू मोर न्यूज़, टाइम्स इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एलिमेंट ऑफ करेक्टिव न्यूज़। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से इसको बहुत दूर भेज सकते हैं आसानी से। टेलीफोन देखिए ग्राहम बेल इन्वेंट किया इन 1877 से इसके बीच में। ठीक है, 1876 1970, तो आप 1876 लिखो चल जाएगा। द डिवाइस अलाउज अस टू टॉक विथ ईच अदर वाया वायर इवन इफ वी आर 100 माइल्स अपार्ट। अब इस तरीके से टेलीग्राफ फ़ोन का इस्तेमाल, टेलीफोन के इस्तेमाल में जो मेन भेजा इसने लगाया हो उसमें थॉमस अल्वा एडिसन भी है, इसके बारे में नहीं कहा जाता, उसमें जो मेन कंपैरिजन था उसकी वजह से था। देखिए विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ इन्वेंशन टेलीफोनी वाज वाइडली यूज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मीडिया। ठीक है ना, सो वॉइस ऑफ कम्युनिकेशन ऑन ए ग्लोबल स्केल बन गया टेलीफोन जो है। अब पूछा जाएगा विच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज द वॉइस ऑफ कम्युनिकेशन ऑन ए ग्लोबल स्केल, या विच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ कम्युनिकेशन इन द ग्लोबल स्केल, आप टेलीफोन लिखोगे। ठीक है, रेडियो, वायरलेस रेडियो लॉस कम्युनिकेशन विथ नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, इससे आप बहुत दूर तक कहीं भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जो बनाने वाला मार्कोनी है, इटली में बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। पहले इसको जो खासकर इसको इसलिए बनाता है रेडियो का सिग्निफिकेंस, जो सिग्नल जो उसने मिले किसने मिले, आपके शिप में मिले। शिप पहले मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग और से लेकर जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम वो शिप हुआ करता था, वाई डिफरेंट कंट्रीज से, एरोप्लेन को खोज नहीं हुआ था। सो उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, टेलीफोन रेडियो जो है। अब देखते जाइए, ठीक है, फिल्म देखिए, फिल्म को आप समझ ही रहे हो, लुमिनर ब्रदर्स ने इसको शुरुआत किया, वर्ल्ड में बना पे 1995 में। फिर यहाँ दादा साहब फाल्के ने 1913 में इंडिया की पहली पिक्चर राजा हरिश्चंद्र बनाई। ठीक है, अभी जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है भारत में, है ना, नेशनल अवार्ड की तरह, या उसको प्रेस्टिजियस फिल्म फॉर अवार्ड ही माना जाता है, वो इन्हीं के नाम से मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अभी ये जो जितने भी लोगों ने इसको बनाया है तो भाई बड़े राजा महाराजा के घर के लोग थे, है ना, आम जनता कहाँ बना सकेगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, film making is expensive and there is no guarantee that will recover their investment after being screened to the public. That is why film production also began to attract the wealthy capitalists who would invest in the production. But these capitalists began controlling the content of the films and the social political ideas they propagated. Like newspapers and magazines, films too became a medium of advertising consumers goods and propagating consumer lifestyles. इस तरीके से भी केक कठपुतली रह गया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट पे लिखा है,
दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ कल्चर इज नाउ गिविंग राइज टू द फियर ऑफ कल्चर इंपीरियलिज्म। अब पूछा क्वेश्चन है व्हाट इज कल्चर इंपीरियलिज्म, इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज कल्चर इंपीरियलिज्म, तो हमने पढ़ा इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को एक ही ग्रुप ऑफ इंसान क्या कर ले, हथिया ले, ठीक है। सो कल्चर मतलब जो आप टीवी में क्या देखोगे, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे, टेलीग्राफ में कैसे देखोगे, उसको भी लोग वास्तविकता से कैसे हट के अपने अनुसार ढाल लेंगे। जैसे छावा पिक्चर के बारे में देख सकते हैं, उसमें जो हुआ वो तो वास्तविक में भारत में हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पिक्चरें आप देख सकते हो, है ना, बहुत ही पॉलिटिकल पिक्चरें से बनाई जाती हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अभी सातवें फूले बना उसको लोग देख नहीं रहे हैं जो रियलिटी है, अब फर्जी पिक्चर को देखने चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट जिसको प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने लगे, है ना, तो समझ जाइए वो पूर्ण रूप से वैसा नहीं है, ठीक है। जो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको बिल्कुल देखिए, अभी के समय वैसे चल रहा है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न देखिए तो इसमें भी आ जाएगा वो, देखिए स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगे ब्यार्ड ने इसको बनाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मेड द फर्स्ट टाइम इन 1920, ठीक है ना, और उसमें ब्लैक एंड वाइट बनाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, उन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का खोज कर लिया, दैट इज द बेसिस ऑफ द मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोल ऑफ टीवी इन इलेक्शन। सो टीवी का रोल में क्या होता है इलेक्शन में, इस पैराग्राफ में लिखा है, इसको पढ़कर आप आसानी से लिख सकते हो, इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बड़ा ईजी है ये। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर देखते जाइए। द गवर्नमेंट established द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC in 1926. Its operational expenses were borne out of the tax collected from the radio and TV subscribers. अरे BBC इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक मास मीडिया कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करता है, प्रसारित होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ क्या बोल सकते हो इसको, मास एक्सपेंशन बोल सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में वैसे आकाशवाणी शुरू की गई शुरू में। अब देखिए रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ टीवी मीडिया, इस पैराग्राफ में आंसर लिखा है, यहाँ पे देखिए कमर्शियल टेलीविजन सीरीज एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स एट द वास्ट नंबर इन्फ्लुएंस पीपल इन्फ्लुएंसिंग देयर बाइंग डिसीजंस ऑन देयर लाइफस्टाइल चॉइसेस। द इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर द व्यूअरशिप लेड द चैनल्स टू एक्सप्लोर न्यू थीम्स एंड प्रोग्रामिंग। यही सब समझ जाइए कि अचानक से तो टीवी मीडिया ग्रोथ कैसे हो गया, ठीक है ना, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और लोगों तक आसानी से बारे में पहुंचे। से फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाया जाएगा तो एक साइकोलॉजिकल सेक्शन भी शुरू हो जाता है कि जो इंसान बार बार उसको देखता है उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये इसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज न्यू एज मीडिया, ठीक है। व्हाट इज न्यू एज मीडिया, हाउ इट इन्फ्लुएंस दी कंपोजर ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट्स, ऐसा लिख के क्वेश्चन आएगा, मतलब पूछेगा न्यू एज मीडिया ने कैसे अपने आप को पूरा इन्फ्लुएंस कर लिया। तो इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के बारे में हमको लिखना है, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड स्वीट, इसको आप आसानी से लिख सकते हो। मैंने सारे पॉइंट्स में मार्क कर दिए, जिसको मैंने मार्क किया उसको लिख दिया। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूनिफाइड द कंप्यूटर, फोन, टेलीविजन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, है कि नहीं। वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूनिफिकेशन इज दैट पीपल आर नो लॉन्गर म्यूट स्पेक्टेटर्स बट ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। अब लोग खुद अपने हिसाब से वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। इस तरीके से वो मास मीडिया में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, खुद ही जर्नलिस्ट हो गए वो लोग, ठीक है। यहाँ देखिए द इंटरनेट हैज़ प्लेड द रोल ऑफ ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स टुगेदर ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म ग्लोबली। आफ्टर 1990 इंटरनेट यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, एवरी इंडिविजुअल कैन नाउ बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड बाय इंटरनेट एंड डिजिटल रिवोल्यूशन। दे इन्फॉर्मेशन एक्सेस इंटरनेट सोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, है नहीं। They are just not a source of information and entertainment, but a platform for economic and commercial activities such as trade, buying and selling, banking, etc. This is the paragraph and this is the most important question in this chapter. Okay. Let's see the next part, that is here. यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है द रोल ऑफ मास मीडिया इन डेमोक्रेसी, द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, मैंने लिख चुका हूँ, मतलब मार्क कर दिया मैंने। देखिए हमने पहले देख लिया कि अलग अलग प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, है ना, और टीवी, सैटेलाइट से और इंटरनेट डिजिटल से क्या हो गया, सारी चीज़ें वो लोगों के हाथ में चली आई। पहले हमने देखा, पहले उसको सेंसर में वो लोग कंट्रोल करते थे, कल्चरल इम्पीरियलिज्म चल रहा था, बाद में ओपन अप हो गया है कि नहीं धीरे धीरे। अब बाद में इंटरनेट और डिजिटल इंडिया आने सबके हाथ में पहुँचे, तब लोग क्या हो गए, पार्टिसिपेंट भी हो गए। अब इस तरह से लोग इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, हर तरह से गैदर करके उसको शेयर कर सकते हैं, खुद ही इन्फॉर्मेशन बना भी सकते हैं, ठीक है। सो अब इसका रोल डेमोक्रेसी में क्या है, सो यहाँ पर उसका मोस्ट पैराग्राफ में एग्जांपल दिया है। देखिए एक्सपर्ट स्टेट मास मीडिया सेंट्रलाइजेस पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रीट्स द एक्सचेंज ऑफ व्यू एज एंटरटेनमेंट। अर्लियर पीपल डिस्कस इश्यूज इन स्मॉल ग्रुप सो देयर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज हाई
एंड द व्यू द एक्सचेंज वॉज मोर डाइवर्सिफाइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब आप ग्लोबली किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, एक चैनल देख रहे हो, तो उसी चैनल पर बहुत लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। अब लोगों के पास इतना समय ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते कि उसमें क्या चाह रहे, तो लोग इसको कमर्शियली कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म कहते हैं। इसमें स्टक बाय द वे एंड द यूजेस ऑफ मेथड्स ऑफ टीवी एंड चैनल्स। इसका मतलब है कि किस तरह से आप टीवी और चैनल को इस्तेमाल कर रहे हो। एक चैनल में झगड़ा दिखा रहा है तो लोग देख देख के उसको विरोध देख के बुरे आ जाएंगे, तो वो कभी सही चैनल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, है ना। और कैसे पहले लोग जो सब नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपने अपने थॉट्स को, थिंकिंग को डिस्कस किया करते थे, और डिस्कस करने के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। हाँ, अगर आपको कोई आइडियोलॉजी बतानी है तो पहले उसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म झेलोगे, फिर बाद में धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से क्या था, वो इन्फॉर्मेशन एकदम बायस नहीं था, ये क्या बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन एकदम नैरो माइंडेड नहीं था, डाइवर्सिफाइड था। तो लोग सब प्रकार के पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया करते थे, ठीक है ना। सो इस तरीके से अब क्या हो गया है, वो एकदम छोटा हो गया, उसको डाइवर्स रूप से या बहुत बड़े रूप से लोग उसको देख तो पाते हैं, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी चल रही है, जो विचार या थॉट्स में दिखाए जा रहे हैं, वो एग्जैक्ट होती है, ठीक है। सो देखिए, अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तब बस मास मीडिया रिलेटेड डिस्कशन टेक्स प्लेस between fewer people and are watched by large masses of people who do not get the opportunity to put forward their views and opinions। अब लोग केवल देखते रह जा रहे हैं उसको, उसके ऊपर डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। So the most important drawback for the mass media in the democracy is criticism। People are unable to criticize the thoughts and views they are thinking about the particular matter, and they are just a puppet watcher, ठीक है। यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, मीडिया चैनल्स encourage them to think in a particular way which reflects the views of the channel owners। अब इस तरीके से क्या हो गया, लोगों ने इसको किस तरह से दिखाया, मीडिया वालों ने उसको उस तरह से लोग देख रहे हैं और उसको ऐसे फॉलोअप कर रहे हैं। जैसे पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर में एकदम घुस गए तो एकदम आपको सुपरमैन बैटमैन एकदम रियल नहीं लगे, तो कि फर्जी है, ठीक है ना। और इधर हीरो लोग आपको एकदम देवता लगने लगे, वो लोग गधे गए हैं, एक्टर बस हैं लोग, कुछ आपको जान नहीं बचा पाएंगे आपको। तो डॉक्टर जाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। साइंटिस्ट लोग उसका खोज करते हैं, उसको लोग जानते ही नहीं है। तो लोग एक्चुअली से क्या होने लग गए, दूर होने लग गए। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ मास मीडिया एंड डेमोक्रेसी। देखिए अब और क्या लिखा है, द मास मीडिया विल प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल इन वॉर ब्रॉडकास्टिंग एवरी डिटेल डायरेक्टली इन टू पीपल होम्स। तो देखिए वॉर से क्या होता है, इंसान आसानी से सिंपैथी रख सकते हैं। इसराइल वॉर चल रहा है ना, होमस चल रहा है, उसको बार बार दिखा देंगे तो लोग इसराइल के खिलाफ हो जाएंगे, तो उसको दिखाने ही बंद कर दिए। या अभी ये इंडिया या रशिया यूक्रेन चल रहा था, अभी थाईलैंड वियतनाम चलने को है, वहाँ से भारत पाकिस्तान चलते रहता है, चाइना भारत चल रहा है ना, श्रीलंका इधर से चल रही थी, कितनी सारी दिक्कतें चल रही हैं और ग्लोबल लेवल में बहुत सारे न्यूज़ हमको मिलते भी नहीं है। इस तरह से क्या हो गया, जिस हिसाब से आपको मास मीडिया क्या करेगा, इस न्यू एज में इन्फॉर्मेशन को रिले करेगा, पेश करेगा, तो वो हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे अपने माइंड में रिले करते हैं। क्या हमने बैकग्राउंड चेक किया या नहीं किया, है कि नहीं। इसीलिए टू यूज़ द अप्रोप्रिएट सेक्शन एंड टू यूज़ एफिशिएंटली द मास मीडिया, यू शुड बी ए पार्टिसिपेंट, है कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट आजकल क्या करती है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको जेल में डाल देती है। तो इस तरह से आप क्या करिए, करेक्ट मेथड से अपने को प्रेजेंट करिए, ताकि आप किसी को ऑफेंड कर सकें ना कुछ और कर सके, और अपने मास मीडिया में योगदान को प्ले करिए। ओके, दिस इज हाउ दिस 2 or 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड यू शुड लर्न अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। See, let's see the question number 8. What is the role of advertisement in modern mass media? ठीक है, इसको याद रखिए। एडवर्टीजमेंट इज द बेसिस ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ मास मीडिया एंड द बैकबोन ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक फंडिंग बाय मास मीडिया इन टू कंट्री। ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए, विच कम्युनिकेशन मीडिया आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग टुडे, विच मीडिया हैव रिप्लेस देम, गिव सम एग्जांपल। तो इसमें न्यूज़ मीडिया के बारे में पूछे, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, लेकिन आप याद रखिए